Hello, Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? I can't see the cameras open. This is me, Miss Sandaleep. Yes, now I can see some of the faces. Still, I'm waiting for some of them to open their cameras. Surprised to see me? Not exactly see me because the camera is off. So I'm here to have a chit chat with you. You are having which period? Can I have your mics on, please? Miss Geography. Yes. So I can hear the background as well. So I just want, let's start discussing something very important. Mustafa Nagaria, where are you? Can you hear me all? Yes, miss. Yes. You can hear Yes, me? miss. Yes, Who's miss. this, Mahat? Okay, I Yes, can't see you guys. Actually, there are certain cameras which are off, and I'm not liking that. So Miss, please turn on your cameras first and then you can unmute yourself. I'm here just to talk to you guys and that's it. Which period are you supposed to attend right now? geography. Geography. And who's teaching your geography? Mm, Any idea? This is your first geography period that you will be taking for this term? Second. Second. So may I know the name of the teacher? Mm, Yes. Hamza Farooq, I can't see you. Yes, guys, come on. I want the answer. The name of the teacher who will be teaching you geography for this term. So Miss Tariq, Afshin Ali. आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मिस आवाज। आ रही है ना? मिस अफशीन अली, मिस अफशीन पढ़ाएंगे। अच्छा, मिस अफशीन पढ़ाएंगी. Exactly. So Tariq Ali Hassan will be teaching you history and geography will be done by Miss Afshin. Okay, just a moment, please. Okay, guys, I think Miss Afshin is here. She will be starting with the chapter. So I'll be talking to you guys for sure, but not today. But inshallah, in the coming week, I will come and I will talk to you guys. Okay. So Miss Afshin, you can carry on with your period. Okay. I'm going now. Assalamu alaikum everyone. Am I audible to everyone? Yes, miss. Okay. Sorry for the delay today, beta. Because of some technical glitches, I won't be able to connect and I won't be able to enter the room. And you know that internet servers and connections are very low, and sometimes it's like that we have no internet connection. So as I'm late today, so without wasting time, starting with the topic water, just a recap of yesterday classes, student. Yesterday we have done about water cycle, right? And after that water cycle, we have done the tributaries of river Indus. Yes, miss. ठीक है. Yes, और miss. उसके बाद फिर हमने स्टार्ट लिया था डिटेल में ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस दोनों की थी. हमने मैप्स भी किए थे साथ में, उनके मैप्स की एक्सप्लेनेशन भी की थी. ये मैं स्लाइड शो दोबारा से रन कर रही हूँ. आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि यस और नो सही है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है. ओके मिस. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त हम लोग जो फेस कर रहे हैं. Now who is there in the waiting room?
Okay, now here you can see the slide of water resources, water cycle. We have done this in detail, right? Then we have done the Indus system, that is eastern and western tributaries of river Indus along with the map. Then we have done the discharge of river. We have done in detail what is the meaning of discharge of river. And after that, we have done the importance of rivers to Pakistan. This is what we have done till yesterday, right? Now we have another system which is known as rivers of Balochistan. ठीक है ना. अब ये रिवर्स ऑफ बलूचिस्तान जो है ये हमने करने हैं आज. और रिवर्स ऑफ बलूचिस्तान स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो दे आर मच स्मॉलर देन द इंडस सिस्टम. They normally flow only during the monsoon season, and most of the rivers may remain dry for most of the year. They have little value as source of our irrigation. Example of the rivers are River Loralai, River Chakar, River Bulan, River Hub, River Purali, River Hingol, and etc. So these are the basically rivers of Balochistan, which have no value as a source for irrigation. So this is all about the river system of Pakistan, that we have two river system, River Indus system, and then we have rivers of Balochistan. Now the important, very important topic which we'll start today is irrigation. Irrigation, two broad categories of irrigation, students. Very important topic, I need everyone's attention. Irrigation, two broad categories of irrigation. Number one category is traditional or conventional method of irrigation, and number two is modern method of irrigation. Before starting with these two categories, I just wanted to know, tell me, what do we mean by irrigation? If I ask you to define irrigation, how will you people define irrigation? How will you define? How will you define irrigation? So in a very simpler words, artificial supply of water to the plants, are providing artificial supply of water to the crop for crop growth. Providing artificial supply of water to the plants for crop growth is irrigation. ठीक है ना? That we are providing water from different sources to give water to our crop, which is essential for our crop growth. So this is the brief one mark definition of irrigation. Now starting with methods of irrigation. Now with time, there are numerous methods of irrigation which are taking place, which have been taken place. Some are obsolete and some are still practiced, right? So starting with the traditional methods of irrigation. Traditional methods means conventional or old methods. And the old methods of irrigation apply only for small scale farming. Small scale farming, the people who grow crops for their own uses on a very small scale. So there they use the traditional methods of irrigation. Now we have the methods of irrigation. Traditional methods of irrigation here are Shadoof, Charsa, Persian wheel, Kares. Now this system of irrigation, Kares, is only practiced in Balochistan. Tank irrigation, seasonal canals, inundation canals. Now these are the system of irrigation which are considered as the old or traditional methods of irrigation. Now starting with Shadoof. Now students, here you can see Shadoof. Now look at the diagram of Shadoof. You can see that a pole, a wooden pole, a weight is attached here on the pole and a bucket on another part side of the pole. With the help of the pole, the bucket goes inside the water. The bucket goes inside the water and then the water comes out with the bucket. You can see the diagram, two diagrams here, right? So this is how the Shadoof system works. This is how, beta देखो connection charging पे नहीं आ रहा है.
ठीक है. A shadoof is a large pole balanced on a cross beam. A rope and a bucket are on one end. A heavy counterweight is at the other end. The bucket scoops the water out of the Nile. यहाँ पे river का नाम Nile लिखा हुआ है. आप river and is swung up and around and dumped into the canal system. Canal system means कि जो उन्होंने ditches बनाए हुए हैं जिससे पानी जा रहा है fields के ऊपर. ठीक है. तो this is how this system works, but it is no more practiced. अब ये सिस्टम प्रैक्टिस नहीं होता. इट्स एन ऑब्सोलीट सिस्टम. लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हाउ इट वर्क्स, शडूफ कैसे वर्क करता है. यहाँ पे मैन पावर यूज होती है. पोल के दो एंड्स हैं. एक एंड पे हम वेट अटैच कर देते हैं, दूसरे एंड पे हम रोप के साथ बकेट अटैच करते हैं. विद द हेल्प ऑफ द वेट जो है वो बकेट पानी के अंदर जाती है, भरती है, बाहर आती है और बकेट के कंटेंट को हम स्पिल कर देते हैं अपने चैनल्स में और चैनल्स के थ्रू जो है ये हमारा फील्ड को इरिगेट करता है. लेकिन अगर आप देखें इस तरह से बकेट भर भर की चैनल में डालनी है तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और ये लार्ज एरिया कवर नहीं कर सकता इस तरह से पानी. तो ये स्मॉल स्केल इरिगेशन सिस्टम है और इसमें मैन पावर यूज होता है. दिस इज ऑल अबाउट शडूफ. First traditional method of irrigation is shadoof and this is how it works. Next irrigation method is charsa. Here you can see the diagram student charsa. ठीक है. आप इजीली उसको मॉनिटर कर सकते हैं. आप देख रहे हैं कि चारसा में क्या है. वेल है और यहाँ पर ये एनिमल है. एनिमल टाइड विद द रोप एंड दे आर अटैच्ड विद द पुली. व्हेन animal moves forward, ठीक है, the bucket comes up, right, and then the farmer or the man person जो है वो पानी निकाल लेता है. ठीक है. यहाँ पर जैसे बुलॉक्स जो है वो जो है मूव बैकवर्ड करेंगे तो पुली के थ्रू रोप जो है वो वेल में जाएगा और जब एनिमल फॉरवर्ड मूव करेगा तो वो पानी भर कर ऊपर आएगा और पानी के कंटेंट्स को हम पानी निकालेंगे और फिर हम उससे इरिगेशन करेंगे. तो इन चारसा animal power is used to irrigate the crop. Again, it is no more in practice nowadays. Next is Persian wheel. Now this is the system of irrigation students which is still practiced in Pakistan. Yes, it is still practiced in Pakistan. Persian wheel पंजाब में और नॉर्दर्न सिंध में बहुत ज़्यादा अब तक प्रैक्टिस किया जा रहा है. ठीक है. आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं. एनिमेटेड डायग्राम भी मैंने आप लोगों के लिए रखी है यहाँ पर और यहाँ पर एक रियल डायग्राम भी रखी है जिसमें आप देख रहे हैं. दिस इज हाउ इट वर्क्स. In this system, animal power is used to pull water from the well. Persian wheel is a continuous water supply system which can irrigate a comparatively wider area. A number of buckets are lowered into a well through a chain adjusted on a rotating wheel. Here you can see this. In this real diagram picture, you can see that number of buckets are attached on the wheel and the wheel comes up with water. और यहाँ आप देखें this is the water content. यहाँ पर ये water content bucket से रिलीज हो रहा है और ये जो चैनल है ये एक हमारा नीचे जा रहा है और नीचे से सीधा सीधा ये डायरेक्टली फील्ड में जा रहा है. तो इस तरह से कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर है कि ये जो है आप देखें ये जो है ये मूव करते हैं यहाँ से पानी जाता है और यहाँ से ये कंटेंट स्पिल होते हैं और स्पिल होने के बाद यहाँ से आप देखें सेकंड डायग्राम में आपको पानी स्पिल होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे और ये स्पिल होने के बाद जो है ये डायरेक्टली लीड कर रहे हैं हमारे फील्ड्स की थ्रू कनाल के सिस्टम की मदद से. ठीक है. अ नंबर ऑफ बकेट्स आर लोवर्ड इनटू अ वेल थ्रू अ चेन एडजस्टेड ऑन अ रोटेटिंग व्हील. द एम्प्टी बकेट्स गोज डाउन इन द वेल एंड देन कम आउट फिल्ड with full of water. So this is how this system works, right? So I hope up tak yahan pe is this very much clear to all of you or not? These three system of irrigation, shadoof, charsa and Persian wheel. Is this clear or not? Shadoof, manpower is used attached with the rope, theek hai, weight on the one side and bucket on the other side. Then we have charsa in which animal power is used, water is taken out from the well, and in Persian wheel again here blindfolded bullocks are used and the wheels, wooden wheels pots are attached and the wheel goes inside the well.
The pots are filled with water when it comes out, and then it spills the water into the water channel which are leading towards the agricultural field. Yes students, jaldi se thumbs up से मुझे show करें, is this clear or not? Okay, Baat, thank you Abdul Mustafa, thank you Mustafa, Muhammad Mustafa. Okay, fine, thank you Mahad. ठीक है बेटा, तो is this is up till now, this is very much clear to all of you, right? Now another system of irrigation, thank you Muhammad Ali, traditional method of irrigation is Kares. Thank you Sarim. ठीक है, अब यहाँ पे कारेज है. मैंने इनिशियली आई हैव टोल्ड यू दैट दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन ओनली इज प्रैक्टिस्ड इन बलोचिस्तान. कारेज का सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बलोचिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं हम. पूरे पाकिस्तान में कारेज कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं हो रहा. अभी तक जो ट्रेडिशनल सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया, शडूफ एंड चारसा, मैंने कहा कि अब ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं होते, कभी होते थे. Persian wheel we have just started. Persian wheel मैंने कहा this is the system which is still practiced in Pakistan, though it's a traditional method of irrigation system, but it is still practiced in Pakistan. Next is Kares. Kares again is a traditional method of irrigation system which is only practiced in Balochistan. How this system of irrigation basically works. स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको यहाँ पे 2 लिंक्स दिए हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लें. ये 2 वीडियोस आप लोगों ने आज देखनी है. दिस इज रिलेटेड टू कारेज. आई वांट एवरीवन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज ये वीडियो देखें ताकि मैं इस पर आपसे क्वेश्चंस कर मिस आप लिंक शेयर कर देंगे एलएमएस पे? काइंडली प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, ठीक है, तो ये आप लोग वीडियोस जो हैं आप लोगों ने देखनी है दोनों. ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस हैं रिलेटेड टू द कारेज. एक एनिमेटेड वीडियो है और एक रियल वीडियो है बलूचिस्तान से, जिसमें आपको इंग्लिश सबटाइटल्स मिलेंगे, बिकॉज द पर्सन हु आर डिस्क्राइबिंग दिस मेथड इट इज़ इन बलोची लैंग्वेज, सो यू कैन ईजिली रीड द इंग्लिश सबटाइटल्स एंड ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर बेसिकली एक्सप्लेनिंग एंड हाउ दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन वर्क्स. सो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट कारेज में, यहाँ पर आप देखो कि माउंटेनियस एरिया, देखो कारेज अगर देखें तो बलूचिस्तान में हमारे पास बेसिकली ऑर्चर्ड फार्मिंग होती है, फ्रूट फार्मिंग होती है. हम फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, अनार, चेरीज, ठीक है, एप्पल्स, आलमंड्स, पीचेस, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? सब हमारे पास बलूचिस्तान से आते हैं. तो बलूचिस्तान, नॉर्दर्न बलूचिस्तान में हमारे पास फ्रूट फार्मिंग होती है. तो फ्रूट फार्मिंग को, ऑर्चर्ड फार्म्स को हम इरिगेट कैसे करते हैं? ठीक है, इरिगेट कैसे करते हैं कि वो माउंटेनियस एरिया है और बारिश होने की वजह से वहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो हाई होता है. ठीक है, अब उस ग्राउंड वाटर टेबल को हम क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, तो हम उसको एवेपोरेट होने से भी बचाना है और उस वाटर को यूज़ भी करना है. तो दिस मेथड ऑफ इरिगेशन बेसिकली डेवलप. नाउ यू कैन सी दिस, बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज द वाटर टेबल. ये पूरा हमारे पास वाटर है. ठीक है, आप देखें कि माउंटेनियस स्लोप्स पे ये वाटर है. अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ से लेकर माउंटेनियस स्लोप से लेकर सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग कनाल डिग किया जाता है. ठीक है, लॉन्ग कनाल डिग किया. ठीक है, अब लॉन्ग कनाल डिग किया तो मीन्स हियर द सप्लाई ऑफ वाटर इन द कनाल. ठीक है, और ये सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग कनाल होता है. देन वी हैव, ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्टिकल शाफ्ट. तो बेसिकली ये दे आर द ऑल आर बेसिकली मेंटेनेंस शाफ्ट. ठीक है, ये मेंटेनेंस शाफ्ट है. ये मेंटेनेंस शाफ्ट क्यों है? बिकॉज दिस इज अ सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग टनल. ठीक है, कनाल है. तो इन केस के यहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो जाए, पत्थर फंस जाए या कुछ फंस जाए, तो यहाँ पे वी कैन इजीली इंसर्ट द मेंटेनेंस शाफ्ट. तो हमने मेंटेनेंस शाफ्ट को खोलना है, उसको क्लीन करना है, मेंटेन करना है, एंड देन इट लीडिंग टुवर्ड्स द फील्ड. ठीक है, तो यू कैन सी हियर अगेन द, ठीक है. नाउ हाउ इट वर्क्स बेसिकली, कारेज सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड ओनली इन बलूचिस्तान. Kares is a water tunnel or a narrow underground channel. It starts from the base of a hill or a mountain where groundwater is present. The Kares is dotted with vertical shafts which are used to clean and repair the channel in order to prevent any blockage in the flow of water. Am I clear up till here to everyone?
Is this clear? Yes, miss. ठीक है, तो Kares system is only practiced in Balochistan, students, nowhere else in Pakistan. So Persian wheel is a traditional method of system which is present, still practiced in Pakistan in the province of Punjab and Sindh. And Kares is a traditional method of irrigation which is still practiced in Balochistan. So this is how this system works, right? Shadoof obsolete हो गया है, Charsa obsolete हो गया है. Persian wheel still practiced in Punjab and Balochistan, and Kares is only practiced in Balochistan. ठीक है, कारेज यहाँ पे देखिए, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ये लॉन्ग टनल जो है माउंटेन से डिग करके अंदर तक जा रहे हैं. इट इज एन अर्लियर मेथड ऑफ इरिगेशन. इट इज कन्फाइंड टू द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान. इट इज यूज्ड इन द वैलीज ऑफ क्वेटा, पिशीन, मस्तूंग एंड इन सम एरियाज ऑफ मकरान. ठीक है, अब ये तो है कि है, अब कहाँ से आया, मतलब ये बेसिकली कहाँ कहाँ. दिस सिस्टम इज ऑल्सो यूज्ड इन ईरान विद नेम ऑफ अनार एंड इन एडजॉइनिंग अरब कंट्रीज एज फोगारा. तो ये तो खैर एक एडिशनल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है इसको, लेकिन बेसिकली देखिए अर्लियर मेथड ऑफ इरिगेशन है, कन्फाइंड ओनली टू द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान एंड यूज्ड इन द वैलीज ऑफ क्वेटा, पिशीन, मस्तूंग. तो देखो पिशीन, मस्तूंग, क्वेटा में सारे हमारे पास फ्रूट गार्डन्स हैं, ऑर्चर्ड फार्मिंग होती है वहाँ पर, और वहाँ पे फ्रूट्स ग्रो होते हैं. तो बेसिकली ये मेथड ऑफ इरिगेशन जो है इन वैलीज में क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रूट फार्मिंग हो रही है. यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से अभी बताएं. नो मिस. ठीक है, क्लियर है सबको, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, एवरीथिंग इज क्लियर कट? Yes, miss. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट, उस पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा सीजनल और इनंडेशन कैनाल. ये भी हमारा जो है सीजनल और इनंडेशन कैनाल्स. बेसिकली कैनाल्स क्या है, लॉन्ग डिचेस हैं, जो खड्डे जो हैं, जिसे हम उर्दू में कहें खड्डे खोद दिए हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे से डिचेस खोद दिए हैं. ठीक है, कैनाल्स खोद दिए हैं. तो व्हाई सीजनल और इनंडेशन कैनाल? Seasonal or inundation canals are canals which are only active during the rainy season or when the river is in flood. जब फ्लड आता है, रिवर में फ्लड आता है, तब ये सारा जो पानी है, एक फ्लड वाटर है, वो इन कैनाल्स में डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि जो एरियाज को फ्लड होने से बचा सके. तो और सीजनल कैनाल्स मतलब बारिश जब बहुत तेज़ होती है तो बारिश का पानी भी इन्हीं कैनाल्स के थ्रू हम डाइवर्ट कर देते हैं फील्ड्स में. ठीक है, और क्यों हम यूज़ करते हैं, ताकि हम ये पानी जो है वेस्ट होने से बचा सकें. द इनंडेशन कैनाल्स केम इन द यूज इन द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक, हु डग इनंडेशन कैनाल्स इन इंडिया फॉर इरिगेशन एंड कोलोनाइजेशन. ये आप लोगों को सिर्फ एक नॉलेज के लिए है. दे वर लेड आउट इन पाकिस्तान अप टू मिडल ऑफ 19th century, right? These canals were seasonal and supplied water only in summer when the donor rivers were in floods. They were beneficial for खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? सीजनल क्रॉप्स होती हैं. जब मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को क्रॉप समझ में आएगा. These canals can only irrigate the flood plains where the land is sufficiently level and slopes downward from the river bank. तो मैंने अभी आपको बताया कि जब पानी रिवर में फ्लड आता है तो वो फिर फ्लड का वाटर हम डायरेक्टली डाइवर्ट करते हैं इन कनाल्स में, और ये कनाल्स जो हैं वो पानी लेकर जाते हैं सीधा सीधा हमारी क्रॉप फील्ड्स में. तो दिस इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ इरिगेशन, बट अगेन हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कनाल उसी वक्त एक्टिव होते हैं, उसी वक्त इनमें पानी आता है जब बारिश हो रही होती है ज़्यादा, या फिर रिवर में फ्लड आता है तो हम रिवर का पानी फ्लड सीजन में डाइवर्ट करते हैं. तो ये इनंडेशन कैनाल्स हैं, सीजनल कैनाल्स हैं. ठीक है, तो सीजनल और इनंडेशन कैनाल्स बेसिकली क्या हैं, फिर से मैं बता देती हूँ कि दे आर ओनली एक्टिव इन द रेनी सीजन, समर सीजन, मानसून सीजन, और एंड व्हेन द रिवर इज इन फ्लड. यस स्टूडेंट्स, अब मुझे बताएं, एनी इशू? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो मुझसे पूछ सकता है प्लीज. मिस इसकी कोई वो है डायग्राम? डायग्राम इनंडेशन कैनाल की मैंने आपको बताया ना. इनंडेशन कैनाल मैंने एक डायग्राम रखी तो है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. नो इश्यूज बेटा, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये किस तरह से पानी जा रहा है ये कैनाल में.
तो बेसिकली दिस इज हाउ द कनाल्स, जिस तरह से लंबे लंबे लॉन्ग कनाल्स हम लगा देते हैं और उन लॉन्ग कनाल्स में हम पानी डाल छोड़ देते हैं और ये पानी जा रहा है, देखें क्रॉप फील्ड्स में। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मिस ये सिर्फ बलूचिस्तान में होता है? हाँ, सिर्फ ये मतलब वो सेम है। देखो बलूचिस्तान में बेसिकली क्या हो रहा है कि बलूचिस्तान में हम माउंटेन स्लोप से ले रहे हैं, हम माउंटेन स्लोप से इसी तरह से लॉन्ग कनाल्स जो हैं वो डिग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमने रिवर के साथ लंबे लंबे कनाल्स डिच कर दिए हैं ताकि हम जब रिवर में फ्लड आए तो हम जो है वो पानी को डाइवर्ट कर सकें। बेसिकली कनाल्स आर सेम। कनाल्स की जब हम बात करते हैं तो इसी तरह से एलोंगेटेड कनाल्स ही होंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अभी ऑनलाइन वो वीडियो दिखा सकूं। अच्छा चले, पहले हम करने से पहले एक और सिस्टम कर लेते हैं। लास्ट सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, दैट इज टैंक इरिगेशन। टैंक इरिगेशन देखो क्या है, ये आपको देख रहे हैं ना, ये छोटा सा एक पॉन्ड, मैनमेड पॉन्ड है ये कोई नेचुरल नहीं है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे आप देखें साइड जो वॉल्स है अंदर वो स्टोन वॉल्स हैं, ठीक है, स्टोन वॉल्स हैं और इसमें पानी भरते हैं, ठीक है। क्यों भरते हैं, स्मॉल स्ट्रीम क्यों बनाते हैं, स्मॉल रिजर्वॉयर क्यों बनाते हैं, बेसिकली ताकि हम इसमें स्टोर कर सकें पानी, बारिश का पानी स्टोर कर सकें। और ये जो मेथड है टैंक इरिगेशन का, ये डेजर्ट एरियाज ऑफ सिंध में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, अब तक प्रैक्टिस हो रहा है डेजर्ट एरियाज ऑफ सिंध में। देखें, टैंक इरिगेशन इज प्रैक्टिस बाय कंस्ट्रक्टिंग मड बैंक्स अक्रॉस स्मॉल स्ट्रीम्स टू मेक अ स्मॉल reservoir which collect excess water during the rainy season. These reservoirs are sometimes covered with plastic and the water is used for irrigation, domestic purpose, livestock, etc. Practice in the desert areas of Sindh. ठीक है, तो इसको बेसिकली कवर कर देते हैं बड़े बड़े पत्तों से, और लेकिन डेजर्ट एरियाज में पत्ते तो होते नहीं, तो प्लास्टिक शीट से इन पॉन्ड्स को को कवर कर दिया जाता है, इन रेजर्वॉयर्स को। क्यों कवर करते हैं, तो इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर थ्रू एवेपोरेशन। वाटर लॉस जो एवेपोरेशन से होता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, गर्मी बहुत होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने एवेपोरेशन लॉसेस को कंट्रोल करना है, तो इसलिए इस पानी को, रिजर्वायर को कवर किया जाता है ताकि पानी का एवेपोरेशन लॉस वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर सके, ठीक है। तो इस तरह से रेनी सीजन में टैंक इरिगेशन जो होती है, बेसिकली इन रेजर्वायर्स से, बहुत सारे ये रेजर्वायर्स इन लोगों ने बना के यहाँ पे रखे हुए ताकि ये उस वक्त में ये पानी इस्तेमाल करें जब उनको पानी की ज़रूरत है, जब वहाँ बारिश नहीं होती, ठीक है। तो ये अपने जानवरों को पिलाने के लिए भी यूज़ करते हैं, अपने जो स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये जो अपने लिए जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको पानी देने के लिए यूज़ करते हैं, और खुद अपने डोमेस्टिक यूजेस के लिए, खाना पकाने के लिए, सैनिटेशन के लिए और अपना ड्रिंकिंग के लिए भी यही पानी ये लोग यूज़ करते हैं। So this is again practiced in desert areas of Sindh. Yes, it is widely practiced in desert areas of Sindh. So today we have done the topic of traditional methods of irrigation, again in which we have done shadoof. ठीक है, आप पिक्चर देख लें दोबारा से। शडूफ हम यूज़ कर रहे हैं, शडूफ में आपके सामने है किस तरह से ये यूज़ होता है। एनिमल मैन पावर यूज़ होता है, चारसा में वेल से पानी निकालते हैं, एनिमल पावर यूज़ करते हैं। पर्शियन व्हील में भी वेल से पानी निकालते हैं, एनिमल पावर यूज़ करते हैं, लेकिन इट इज़ बिट टेक्निकल सिस्टम ऑफ इरिगेशन और इट इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन पंजाब एंड इन नॉर्दर्न सिंध। इसके बाद हमारे पास है कारेज। दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज ओनली प्रैक्टिस्ड इन बलोचिस्तान, नॉर्दर्न बलोचिस्तान में, क्वेटा में, पिशीन में और मस्कूम वैली में ये यूज़ हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है आपका टैंक इरिगेशन, जो कि मैंने अभी बताया कि ये हमारे पास यूज़ हो रहा है डेजर्ट एरियाज ऑफ सिंध में। और इसके बाद हमारे सीजनल और इनंडेशन कैनाल्स हैं, विच आर ओनली एक्टिव इन ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड व्हेन द रिवर इज इन फ्लड। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो देखो, यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, वरना मैं आप लोगों को दिखा देती। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन में वीडियो नहीं आती है, तो कैसे करें अब हम? मैं मुश्किल हो रहा है आप लोगों को दिखाना ही मुझे, तो मैं आप लोगों को चाहूँगी कि आप लोग खुद ही देख लें, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग खुद ही देखिएगा प्लीज़, ये दोनों वीडियोस देखिएगा,
और दोनों वीडियोस देखने के बाद फिर मेरी आप लोगों के साथ अब जो क्लास होगी, आई थिंक अब हमारी क्लास नेक्स्ट वीक की है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक में फिर मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगी। सो अब आप लोग मुझे बताएं, आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट पेस पे चली है क्योंकि हम बहुत लेट कनेक्ट हुए हैं आपस में बिकॉज ऑफ the network problem and issues. So now let me tell one thing to you all, that you have to be with my pace, students. The reason behind this because we have to cover 10 chapters in a row, and अगर हम 10 chapters in a row complete करें तो we have to be fast. And these all lessons are recorded lessons, so you can take the recording also from the administrations as well. So now tell me, is this clear to everyone? The traditional methods of irrigation, all the types of irrigation is clear to everyone, each and everyone, single student or not? I want the input from everyone. I want the input from everyone, please. Yes, please. हमजा, आपका आरज, आप लोगों का सबके जो है वो कैमराज ऑन क्यों नहीं है? आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अपने कैमराज ऑन रखने हैं? हमजा फारूक, ओके। सो स्टूडेंट्स, जी बेटा, सॉरी, क्लास ओवर हो गई? क्लास अभी तो मैंने ओवर नहीं की, मैं आप लोगों से फीडबैक ले रही हूँ कि आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए कि वॉट एवर वी हैव स्टडीड टुडे, द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इज दिस अंडरस्टूड, इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, miss. टू एवरीवन? Yes, miss. Yes, miss. ओके, नवाल, इज दिस क्लियर टू यू? Yes. Okay, thank you, beta. So yes, from my side, this is all for today, students, and we will meet inshallah next week, that is on Monday, inshallah taala, and we'll continue with the topic modern methods of irrigation. और फिर next week की दोनों classes के बाद I'll put up an assignment on LHS. तो उस पर फिर जो है आप लोगों को easily you will be able to do the assignment and then meet the deadlines and submit it to me on time. So this is how these system of irrigation, traditional system of irrigation works. Again, फिर से बता दूं, Persian wheel traditional method of irrigation is still practiced in Pakistan, in the province of Punjab and in the province of Sindh. Kares traditional method of irrigation still practiced, but only in Balochistan, nowhere else in Pakistan. Tank irrigation only practiced in the desert areas of Sindh. So yes, from my side, Allah Hafiz. See you all on Monday.